تب تو سوال درې د بہت اچھا ہوگا. ڈبل نو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. تلاوت قرآن پاک احمد جان صدیقی صاحب نے کی. اور یہ میٹنگ جو ہے آج کی لیجسلیٹر کونسل کی یہ جناب وزیر بنگلہ شاہ کے آفس میں. اور اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جنرل باڈی کا اس میں چوز کیا جائے, جنرل باڈی کی سلیکشن ہو کیسے ہو, اور جنرل باڈی کے ساتھ ساتھ یہ جنرل باڈی جو ہے یہ بزنس کونسل اس کی اسٹریٹجی کیا ہوگی, کیا طریقہ کار ہوگی, کیا چیزیں ہوں گی, کیا ذمہ داریاں ہوں گی, اس کے لیے ہم لوگ یہاں جمع ہوں. اور اس میں سب سے پہلے میں سمیع اللہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ ان کے ذہن میں جو آئیڈیاز جو سوال ہیں جو بات ہے یا بزنس لیڈر کونسل کی جو تجاویز ہے کس طرح اس کو مزید فعال کیا جا سکتا ہے, ایکٹیو کیا جا سکتا ہے. ایک پیپر سادہ ہم لوگ لیں گے. سادہ پیپر اپنے خیالات سے نہیں, اگر اس کو ایسے الٹا دیں تو یہ سادہ پیپر اس پہ لکھیں تو بہتر رہے گا. میرا خیال تو اس کو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جو اس کو ایسے رہنا چاہیے پیپر لگا اس میں پیپر اس میں جی کیونکہ وہ رف یوز ہے. اور ہم اب اس اسٹریٹجی کو اور یہ جو لے لیں آپ شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. حاجی محمد شریف صاحب آگے جی تجاویز کیا ہے؟ بس مشاورت کر رہے ہیں. بس جو بھی بہتر ہو اللہ کے نزدیک کوئی ہمارے ذہن پہ لائے, وہ ہمارے دلوں پہ لائے جو خلوص کے ساتھ ہو تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. اسپیشل بزنس جب بھی میں دیکھتا ہوں بلڈنگ فیوچر لیڈر تو بلڈنگ بنتی ہے فاؤنڈیشن سے. اگر ہم نے اس کا فاؤنڈیشن صحیح رکھا تو بلڈنگ بھی میرا خیال سے بہتر بنے. اور بلڈنگ کی اگر بات میں کرتے چلوں یہ بوہیل میں ایک بہترین بلڈنگ بنی. میرا خیال سے اس میں کچھ خطا وغیرہ ہوئی تھی اس کے فاؤنڈیشن میں, تو پورا کمپلیٹ ہو گیا تھا, گلاس وغیرہ لگے تھے اس میں, اور وہ بلڈنگ کلپس ہو گئی, بیٹھ گئے. اس میں گاڑیوں وغیرہ جو پیسہ لگا ہوا تھا تیار ہوا تھا مطلب. تو بلڈنگ اگر کسی کے ذہن میں ہے تو وہ سینٹر جو ہے اس کی بالکل بازو ٹوٹا. تو اس کی وجہ یہ تھی, ریزن یہ تھا کہ اس کی جو پلر تھے وہ مضبوط نہیں تھے. ہم بھی کوشش کریں گے, اتنی مضبوط تو ہم بھی نہیں ہے, لیکن ساتھ اگر مل کر پورے ایک ساتھ ہو جائے تو اس میں طاقت آتی ہے, خلوص بھی آ جائے تو اس میں برکت ہو جاتی ہے. خواہش یہ ہے کہ اگر ہم سے وہ کچھ ہو سکے بلائی کے لیے, پرسنل کے لیے نہیں, دوسرے کو کیا دے سکتے. اپنے لیے تو ہر آدمی سوچتا ہے کرتا ہے, لیکن دوسرے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں, بات ہوئی. اور خدا بھی کہتا ہے کہ اپنے لیے تو سب کچھ کرتے ہیں, دوسروں کے لیے اللہ کہتا ہے کہ میں حقوق اللہ میرا ہے, حقوق العباد دوسروں کا ہے. دوسروں کو آپ نے تکلیف دی, اگر وہ معاف نہیں کریں گے تو ہم بھی معاف نہیں کریں گے. مقصد یہ ہے بزنس لیڈر کونسل کی کہ ہم نے اس کو بڑھانا ہے, زیادہ کرنا ہے, آسانیاں پیدا کرنا ہے. ہم نے ہر طبقے سے لینا ہے, چاہے ٹرانسپورٹر ہو, چاہے بلڈنگ ڈیمولیشن والا ہو, چاہے ٹریڈنگ والا ہو, کوئی بھی ہو جو آنا چاہے ہم اس کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم اس قافلے کو بڑھانا چاہتے ہیں, محدود رکھنا نہیں چاہتے. جو اچھا خدمت کر سکتا ہے اللہ اس کو جزائے خیر دے دے. اور ہم یہی سمجھیں گے, خدمت سمجھیں گے, خادم ہوں گے, مطلب جو بھی ہوگا ہم خدمت کریں گے انشاءاللہ جیسا بھی ہوگا. تو اس کے لیے یہ ہے کہ بھئی اس کو پروگرام کرنا ہے, اس کے لیے
हम तो किसी को हर वक्त ये नहीं बोल सकते कि भाई हमने इसको कितना फंड देना है या पैसा देना है या किसी पैसा लेना है। तो बेहतर ये है कि हम बिजनेस लीडर काउंसिल की तरफ से जो मेंबरान है, अगर कोई 10,000, 15,000, 20,000 करके जमा करके एक प्रोजेक्ट शुरू किया जाए, जिसने जितना पैसा उसने इन्वेस्ट किया उसी हिसाब से उसको पैसा भी मिले, फ़ायदा भी मिले, और बाकी जो इनकम आता है तो कुछ हिस्सा हमने बिजनेस लीडर काउंसिल के जो प्रोग्राम होंगे, जो भी काम होंगे उस पर खर्च होंगे। तो मेरे ख्याल से हमारे ऊपर फिर असर भी नहीं पड़ेगा और किसी को मेरे ख्याल से किसी के लिए मुहताजी भी नहीं होगी, चाहे हम किधर भी प्रोग्राम कर सकें, क्योंकि एक प्रोग्राम की बात नहीं है, हमें फलाह की बात करना है, इंसानी हमदर्दी के तौर पर भी आगे बढ़ना है। तो इसके लिए पैसों की ज़रूरत है और पैसों के बगैर तो हो ही नहीं सकता है। तो इसके लिए बेहतर ये कि एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया जाए जो जल्दी में हो सके, उससे इनकम आना शुरू हो सके, और वही जो प्रोग्राम करें हम उससे जो भी आए ताकि हम दूसरों की तरफ ना देख सके या एक दूसरे को दूसरी की वजह फंड की वजह से कोई उसमें शिरकत न कर सके, मजबूरियाँ होती है। तो मेंबरशिप की जो है फीस हम कम रखेंगे, जो मेंबर होंगे उसका अगर ज़्यादा रख ले तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो भी मेंबरशिप लेते हैं उसका हमने कम से कम रखना है, क्योंकि हमने इसको मुनाफे के लिए नहीं, हमने अखवत एक दूसरे को मिल के एक दूसरे के साथ आजकल के हालात में बाई को टाइम नहीं दे रहा है, लेकिन एक अजीब किस्म का है कि न जानते हुए भी अनजाने में कोई कराची से, कोई लाहौर से, कोई पेशावर से, कोई फराचनार से अगर आपस में मिल रहा है, मिला मोहब्बत बढ़ रहा है तो ये अजीब से लग रहा है, एक अच्छी इत्तेफाक है। तो इंशाल्लाह अगर खुलूस के साथ होगा तो ये फाउंडेशन बिल्डिंग बनेगी, और ये बिल्डिंग सिर्फ इमारात में नहीं होगी, पाकिस्तान में भी होंगी, नाम भी होगा, तब होगा जब हमारे दिल में खुलूस होगा। तो हमारी दुआ है कि हमारे दिल में अल्लाह खुलूस डाले, इत्तिफाक डाले, प्यार मोहब्बत डाले, ताकि हम एक दूसरे की हमदर्दी को जो तकालीफ है अगर हमारे बस के हो, जो हो सके हम उसकी इमदाद कर सकें। बाकी जो भी है अगर साथी कहना है। शुक्रिया जनाब समीउल्लाह साहब। आप किस बिजनेस से रिलेटेड हैं? मेरा तो बिल्डिंग डिमोलिशन और मेंटेनेंस, लेकिन अभी टेक्निकल वर्क्स। जी हाँ, लेकिन ताल्लुक डिमोलिशन से। वो टेक्निकल? जी। समीउल्लाह साहब ने यहाँ हमें 2 पॉइंट की तरफ इशारा किया। पहला इनका कंसेंसस जो है वो फाउंडेशन पे कि बिजनेस लीडर काउंसिल की फाउंडेशन मजबूत होनी चाहिए। तो इस सिलसिले में मेरी जो मालूमात हैं, मैं ये समझता हूँ कि फाउंडेशन तो ऑलरेडी हाजी मोहम्मद शरीफ साहब ने डाल दी है और मजबूत फाउंडेशन है। अब दूसरी बात आती है कि इस फाउंडेशन की हिफाजत हम किस तरह करें। जब कोई फाउंडेशन डालते हैं तो फाउंडेशन को दीमक से, दूसरी चीज़ों से बचाने के लिए उसको हमें क्या क्या सेफ गार्ड लेने चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं। दूसरी उनकी ये कि इसमें पिलर, फाउंडेशन जब बिल्डिंग बने तो पिलर मजबूत हों, तो पिलर के लिए भी हम इसमें यही कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे लोग जो फ़ाल लोग हैं, वो वज़ीर परवेश साहब हैं, शाह सवार हैं, और दूसरे लोग ये पिलर बन के इसका आगे आएँ और काम करें। और तीसरी चीज़ उन्होंने एक अच्छा किया जो मेरे जहन में भी था कि इसकी सोर्स ऑफ इनकम के लिए हमें कोई पॉजिटिव स्टेप लेने चाहिए, क्योंकि फंडिंग से कोई भी इदारा नहीं चलता है। तो कहते हैं कि कोई प्रोजेक्ट होना चाहिए, और प्रोजेक्ट ऐसा हो कि हमारे पास कुछ फंड हो जो मेंबर्स के पैसों से हो, या कुछ लोग डोनेट करें पैसा, तो उसको वो जो है वो किसी ऐसे आदमी को दिया जाए जो बिजनेस में अपना पैसा लगाएगा, और उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसके साथ साथ वो थोड़ा सा प्रॉफिट भी दे, ताकि इसकी सोर्स ऑफ इनकम बन सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा उस पर डिपेंड करें, ना कि लोगों से पैसे बटोरने के चक्कर में कि मेंबरशिप बढ़ा दें या दूसरी चीज़ें या हमें फंक्शन करने। ये 3 पॉइंट हैं कि पहली चीज़ जो है वो फाउंडेशन मजबूत होनी चाहिए, पिलर उसके अच्छे होने चाहिए, पिलर्स की सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, जो इनकी बातचीत की कंसेंसस थी। अब दूसरा जो वो है जनाब अहमद जान साहब, ये बताएंगे, और समीउल्लाह साहब जो हैं ये टेक्निकल वर्क से उनसे। जी जैसा कि आप लोगों ने एजेंडा दिया है तो जनरल बॉडी वर्क स्टडी, मेरे ख्याल में जनरल बॉडी तो हमारे लिए है, जो बॉडी है, जो काउंसिल है या जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, लेकिन इसको आगे बढ़ाना स्ट्रेटेजिक बात है।
या पाकिस्तानी थिंक टैंक में जो लोग बताते थे ये चीज़ें आजकल नहीं चलती। बिजनेस लीडर कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा नाम, अगर आप इसकी नाम को देखें ना कि बिजनेस लीडर्स कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा नाम है, और इस नाम को जो है ना अपने आगे बढ़ाने के लिए और इस पर काम करने के लिए प्रोफेशनल लोग जो है वो बहुत बड़ी हमारी डिमांड है। आई एम नॉट प्रोफेशनल, ही इज नॉट प्रोफेशनल, वी ऑल आर नॉट प्रोफेशनल, वी ऑल आर ओनली एक्सपीरियंस, हमारे पास सिर्फ तजुर्बा है। Difference between the experience and profession. There is lot of difference between experience and professional. We are not professionals, we are experienced people, हमारे पास सिर्फ तजुर्बा है। तजुर्बे की बुनियाद पे आप सिर्फ सोच सकते हो कि यार मैं ये चाइना का जो सेट है ना मैं ये ना लूँ, क्योंकि ये मुझे 1 महीने 2 महीने के बाद जो है ना ये काम करना छोड़ देगा, ठीक है ना। लेकिन प्रोफेशनल टेक्निकल बंदा जो है ना उसको अलग एंगल से देखता है, ठीक है ना। इवन मैं मतलब 20 आई वॉज इन क्लास 10 कि मैंने बिजनेस शुरू किया, 16 साल में उम्र, लेकिन मुझे बात करना नहीं आता, मुझे अपने आइडियाज इम्प्लीमेंट करने नहीं आते, मुझे अपना जो मैसेज है मैं सोचता हूँ, सोचने की जो मेरी ताकत है वो है, लेकिन हाउ टू एक्सप्लेन इट, हाउ टू इम्प्लीमेंट इट, हाउ टू मतलब है कि लोगों को पहुंचाने के लिए वो मैं भी आई कांट, मैं नहीं कर सकता। ये हमारे सारी टीम में यू आर प्रोफेशनल गाय फॉर व्हाट, टू मेक अ स्ट्रेटेजी, टू मेक अ मंशूर, टू मेक अ ऑब्जेक्टिव। ये जो होता है ना लीगल एडवाइजर, किसी भी कंपनी का लीगल एडवाइजर जो होता है वो जो है ना अब कोई केस होता है तो वो अपने केस जो है ना अपने लीगल एडवाइजर के साथ जो है ना वो डिस्कस करते हैं कि सर जी मुझे ये प्रॉब्लम है, अब ये प्रॉब्लम जो है ना इसके लिए आपने मुझे क्या वो सजेशन देनी है, मैं क्या करूँ। तो आप फिर जो है ना अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द गवर्नमेंट या दुबई पाकिस्तान वटेवर उसके मुताबिक जो है ना आप उसको जो है ना एक प्रॉपर वे ऑफ वो सॉल्यूशन जो है ना दिखाते हैं, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं, मैं शरीफ साहब की इतनी कदर करता हूँ ना, जिस तरह मैं अपने बुजुर्गों इसकी जो विजन, इसकी जो थिंक टैंक है, आई रियली अप्रिशिएट हर आइडियाज और हर पर्सनैलिटी, हिज पर्सनैलिटीज एवरीथिंग। इसने एक थिंक टैंक दी है, बस सोचा है कि बिजनेस लीडर कौन सा, एक आपको एक आइडिया दे दिया है, अब जो है ना हमने सोचना है, हमने करना है, लेकिन इस तरह नहीं कि 3-4 मीटिंग्स हो रही है, जी मैं फलाना हूँ, मैं ढिंगाना हूँ, मेरा ये बिजनेस ठीक है, ये कि इंट्रोडक्शन मीटिंग है हो जाती खत्म। लेकिन बिफोर कमिंग इन फ्रंट ऑफ द प्रोफेशनल पीपल ऑफ द बिग बिजनेस ऑफ द टाइकॉन, उन लोगों के सामने आने से पहले यू हैव टू मेक गुड स्ट्रेटेजी। आप जिस तरह हमारा एक वो है पार्क शेवर वेलफेयर, उसका एक मंशूर हमने तैयार किया रिटन इंग्लिश, ठीक है। what we are doing, what we will do, what will be our strategy, सारी चीज़ें जो है ना हमने उसमें लिखी है। वो इस तरह नहीं कि मैंने वो सिर्फ वर्बली जो किया यहाँ पे करके वो नहीं, एक लीगल एडवाइजर के साथ डिस्कस करके यूएई कानून के मुताबिक, पाकिस्तान एसोसिएशन के रूल्स के मुताबिक, पाकिस्तान एम्बेसी और कॉन्सुलेट के रूल्स के मुताबिक एक हमने एक वो स्ट्रेटेजी बनाई है। जो स्ट्रेटेजी हम पहले तो जो आप जनरली बॉडी बनाते हो उसका एक प्रेसिडेंट होता है, उसका एक फाइनेंस सेक्रेटरी होता है, उसका एक जनरल सेक्रेटरी होता है, ठीक है, चाहे वो 2 दिनों के लिए तो क्यों ना हो। ये जो पूरी हुकूमतें आती हैं, क्या उसमें वजीर नहीं होते, क्या उसमें खजानची नहीं होते, क्या उसमें जो है ना मीडिया के लोग नहीं होते। हमने प्रेसिडेंट को चुन लिया है। अब फर्स्ट एक्शन इज दिस कि who will be finance secretary, who will be general secretary, who will be senior नायब और whatever जो who will be monitor and who will be monitor। ये फर्स्ट एक्शन, ये हमारा फर्स्ट एक्शन ये होना चाहिए नंबर 1। और सेकंड एक्शन यहाँ पे हम बैठे हैं, सिर्फ आप एक रफली आइडिया दो यहाँ पे करके, फिर एक लीगल एडवाइजर 2-3-4 आप और दोस्तों को मिला के उसके लिए प्रॉपर तरीके से जो है ना एक पॉलिसी बनाओ, ठीक है ना, एक पॉलिसी बनाओ।
एक मिनट जी, जी मैं आपको सुन एक पॉलिसी तश्कील करो कि भाई व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी आर प्लानिंग, ये हमारा एम है, इस पे हमने काम करना। ये फर्स्ट दो चीज़ें आपकी है बुनियाद, ठीक है ना। पॉलिसी इख्तियार कीजिए, हमारा पैगाम लोगों को, हम लोगों को क्या दे रहे हैं। उस ये जो आप लोगों ने डिस्कशन किया ना कि भाई हम लोगों को सेटअप बना के देंगे, हम लोगों को आइडियाज़ देंगे, हम लोगों को एक राह दिखाएंगे, हम लोगों को रास्ता दिखाएंगे, लोगों की जो फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें इसमें इस पॉलिसी में शुड बी रिटन, ठीक है ना। ये सिर्फ रफली आप सब लोग आए दे, लेकिन फिर इसको प्रॉपर तरीके से पॉलिसी बनाएंगे। फिर जो है ना आप लोगों के सामने यू विल स्टैंड इन फ्रंट ऑफ 500 people, they will be professional, they will be businessmen, then you can discuss and then you can give them a detail, ताकि वो एक लीगल एडवाइजर, एक लॉयर के साथ डिस्कस करके एक बना हुआ पूरा बनी हुई पूरी पॉलिसी हो। फिर आप उसके ऊपर नेशनल प्लेटफॉर्म पर, बिजनेस प्लेटफॉर्म पर, इंटरनेशनल लेवल पर आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। यू कैन डिस्कस इट लोगों के फख्र के साथ, कॉन्फिडेंट के साथ कि व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है ना। मतलब ये बच्चों का गेम नहीं है रियली, इसका काम था आइडिया देना। आइडिया इसने दिया है सर ने, हम इसके मशहूर है, ये भी हमारे सरबराह होंगे फॉर एवर, ठीक है ना। लेकिन अब इसकी जो है ना पॉलिसी बनाना है, ये पिछली मीटिंग में मैंने टेक्निकल तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से, प्रोफेशनल तरीका जो लफ्ज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ वकील साहब आप समझ सकते, ठीक है ना। इसकी जब पॉलिसी बन जाए, ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड बॉडी, सेकंड पॉलिसी, ये आपने 2 दिन में करना है, 3 दिन में करना है, हफ्ते में करना है, इस पे काम करो। जब ये हो जाए उसके बाद जी ना आप उसमें होगा हम कैसे लोगों की मदद कर सकते हैं, मेरी जिम्मेदारी है, आई एम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो आपने नाम दिया है ना, मैं आपको इतने बड़े बड़े मगरमच्छ इसमें अंदर डाल दूंगा ना इस ग्रुप में, रियल एस्टेट के, टूरिज्म के, जनरल ट्रेडिंग के, इंडस्ट्रियलिस्ट, सारे लोग आपके इस झंडे तले आ जाएंगे। लेकिन उसके सामने पहले से हम इस तरह तो नहीं कह सकते जिस तरह हम ये आजकल आपस में लगे हैं कि हमने ये एक पॉलिसी होनी चाहिए, ताकि एक बड़ा बिजनेसमैन जो जिसको टाइकॉन कहते हैं उसके सामने आप कुछ बात करते हो वो एक सॉलिड बात हो, एक ठोस बात हो, ताकि वो बिल्कुल खामोश हो जाए, वो आपकी झंडे के नीचे आ जाए, ठीक है ना। मतलब अगर इस तरह करेंगे जी हम ये एक आइडिया है हम दे सकते हैं, लेकिन आपने उसको प्रूव करना है, आपने साबित करना है कि वी आर प्रोफेशनल। हमारे पास एक फाइनेंस सेक्रेटरी है, ही इज अ प्रोफेशनल है, किसने MBA किया है, आप लॉयर हो, लॉयर के हवाले से आपको शोभा दिया जाए। प्रेसिडेंट साहब हमारे हैं, ठीक है ना, फाइनेंस सेक्रेटरी के हवाले से उसको जो है ना वो शोभा दिया जाए। जनरल सेक्रेटरी जिसमें बॉडी चलाने की है वो हो, सलाहियत हो, जो अपनी पूरी बॉडी को चला सकते हो, वो उसको देने चाहिए, ठीक है ना। इस तरह नहीं कि मैं बंगा वजीर बंगा की आप सब रहोगे, आप प्रेसिडेंट वजीर बंगा कैन डू एनीथिंग, सो इट मींस दैट आई एम स्पॉइलिंग योर बॉडी। अगर मैं किसी ओहदे पे हूँ और वो ओहदा मैं निभा नहीं सकता, इट मींस दैट आई एम स्पॉइलिंग योर बॉडी। हर चीज में डिस्ट्रॉय आई एम गोइंग टू डिस्ट्रॉय योर बॉडी इफ आई डोंट डिजर्व। मैं अगर किसी चीज को डिजर्व नहीं करता, आप मुझे वो ओहदा मत दें, ठीक है ना। देखिए ये है। और फिर ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो वेल एजुकेटेड, जो वेल नॉन हो। एजुकेटेड का मतलब ये नहीं है ये बॉडी हो, लेकिन वी शुड ट्रेन देम। फजल भाई आज बात कर रहे हैं ना, अगर हम इसको ट्रेन कर दें देन ही विल बी, वो एक मतलब दूसरे अंदाज में इसको हम ला सकते हैं। दिस इज आवर जॉब, ये हमारा काम है कि हम इसको किस तरह टाइगर बना सकते हैं। वो किस तरह, जब आपके पास पॉलिसी, जब आपके पास पॉलिसी, वही पॉलिसी वो रीड करके, ये रीड करके, ये रीड करके, इस पे ये काम करके पूरी जो है पॉलिसी याद कर ले, जो भी आपके ऊपर क्वेश्चन करे यू विल गिव देम आंसर, दिस इज योर स्ट्रेटेजी, ठीक है। गैदरिंग छोटे बिजनेसमैन से लेकर मैं यहाँ पे गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ये बात मैंने डिस्कस की है लोगों के साथ, लेकिन लोगों के सामने आने से पहले what we should tell them, what we will tell them, वही बात है, वो क्या कहेंगे उनको। पॉलिसी इज अ मस्ट, जनरल बॉडी इज मस्ट, पॉलिसी इज मस्ट, ठीक है। फिर जनरल बॉडी में जिम्मेदारियां दी जाए कि अभी आप क्या करोगे। देखिए सदर बनने के लिए मैं तैयार हूँ,
जनरल सेक्रेटरी बनने के लिए ये तैयार है, ये तैयार है, ये सर जी दुबई में ये एक फैशन। अच्छा, दूसरी बात ये है कि सबसे पहले हम अपनी जनरल बॉडी को जो है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हम इनको ट्रेनिंग करें कि बिजनेस लीडर काउंसिल क्या है। पहले हमें तो पता चले ना, तो बाद में लोगों के पास जाओ कि बिजनेस लीडर कौन है, हमें तो पता चले, वी डोंट नो येट। अभी तक हमें पता नहीं है कि वो बिजनेस लीडर को तब क्या वैसे आके जमा हो जाता है। इसका मतलब है कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नहीं, योर आइडिया, योर पॉलिसी शुड बी क्लियर। मेरे ख्याल में अभी ये मीटिंग के बाद काफी हद तक क्लियर हो गई है। हाँ, ये रिटर्न ये मीटिंग ये मीटिंग मेरे ख्याल में मैंने ये देखिए काउंसिल की 2-3 मीटिंग ये जो मीटिंग है ना, फॉर्मल मीटिंग ये देखिए सर ग्रुप का है ऐसा व्हाट आर वी ग्रुप, वी आर गिविंग दिस थिंग्स, कंपनी प्रोफाइल, ये चीजें हम आपको दे रहे हैं। अब आप मुझसे क्वेश्चन करोगे, आई विल बी कॉन्फिडेंट, मैं आपको जो है ना जवाब दूंगा, आपको मैं कन्विंस करूंगा कि बाय प्रॉपर्टी फ्रॉम अस, वी आर गिविंग यू अ गुड सर्विस। लीडर्स नमूना है, दूसरों को हमें अपने आप को बना के ये इसका मेरे कहने का मतलब कोई भी गलत ना ले कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें ट्रेनिंग पॉलिश होना चाहिए, पॉलिश होना। मेरे भाई DHL का मैनेजर है, DHL का मैनेजर है, वो हर हफ्ते जो है ना कहते हैं यार ट्रेनिंग है। अरे भाई 20 साल आपके हो गए कि ट्रेनिंग आपकी खत्म नहीं हो रही। सर भाई हमें एक चीज के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक कि आपने ये काम करना है, उससे पहले आप अपने आप को ट्रेन करो कि आप ये बात वहाँ पे करोगे कैसे। आप ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तानियों में नहीं है, इसलिए हमारे मीटिंग में झगड़ों में और हाँ, झगड़ों में मैं मोताबर खान बन गया, ये मोताबर खान बन गया। देखिए ये ट्रेनिंग आपकी बात थोड़ा मैं वजाहत करना चाहता हूँ, इजाजत है। वो ये है कि जर्नलिज्म की फील्ड में आपको वर्कशॉप होनी चाहिए, आपको सेमिनार होनी चाहिए, नेशनली इंटरनेशनली लोकली, मतलब जो भी आपको किसी का पता नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, वो तो होना चाहिए। जैसे ये भाई कह रहे हैं हमारे बिजनेस के लिए ये ट्रेनिंग इंतहाई मस्त है, बहुत ज्यादा ये ट्रेनिंग देगा आपको प्रोफेशनल, नॉट वजीर बंगश, नॉट हाजी शरीफ, प्रोफेशनल गाय हु नोज दिस वर्क। दूसरी बात के लिए तो आपको एक एडवाइस दे दो, अगर आपने ट्रेनिंग लेनी है, बहुत बेहतरीन इंस्टीट्यूट है इधर, 3-3 महीने के कोर्सेज कराते हैं मैनेजमेंट, हर चीज। हाँ अच्छा, आजकल आपको पता है कि जो भी कोई भी इंक्वायरी होती है, कोई भी चीज होती है, डायरेक्ट गूगल इज आवर मास्टर। जो भी मुझसे पूछता है क्या, मैंने कहा लेट मी टू आस्क फ्रॉम माय फ्रेंड, हु इज योर फ्रेंड? गूगल इज माय फ्रेंड, गूगल इज माय फ्रेंड। व्हेन यू विल पुट समथिंग इन अ गूगल, बल्कि वो कहता है बादशाह खान, सर बादशाह खान, बादशाह खान ये था वो था फलाना और ढिंकाना, उसकी पूरी हिस्ट्री। हु इज अजमल खटक दिस हु इज कायदे आज़म इज दिस हु इज कैटरीना कैफ इज दिस आपको पूरी वो देने का, ठीक है ना। अब मतलब है कि सारी चीज आजकल जदीद दौर है, ऑनलाइन है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड, ये जो फर्स्ट 2 स्टेप्स हैं, पॉलिसी सारी हो गई, अपना एक वेबसाइट खोल, पूरा बड़ा वेबसाइट, अभी से वेबसाइट पे काम कर दो, फेसबुक पेज ये सब कुछ है, वेबसाइट बना दो, टेक्निकल असिस्टेंट, ये देखो वेबसाइट बना दो। वेबसाइट कोई भी इफ समबडी विल आस्क यू, आपको कुछ नहीं कहते, ये हमारा वेबसाइट रजिस्टर करो, वो वेबसाइट खोलेगा, रात को सोएगा, क्योंकि मैं वेबसाइट अक्सर रात को सोने से पहले जो है ना खोलता हूँ, तो देखता हूँ सोने से पहले कि भाई ये क्या है। सोने से पहले जो है ना वो वेबसाइट खोल देगा कि जी हाजी शरीफ कौन है, वजीर बंगश कौन है, शाहसवार साहब कौन है, फजल अमीन साहब कौन है, ये सब जी कौन है, इसमें मेंबर्स कौन है, इसकी एम क्या है, इसकी बुनियाद क्या है, ये लोग कर क्या रहे हैं, इनकी एक्टिविटीज़ क्या है, सारी चीज़ होगी। सुबह आपको कहे आई एम गोइंग टू जॉइन इट, नो नीड टू एक्सप्लेन देम। और उसमें लगती है तो आपको कहते हैं 3000 dirham में आपको वेबसाइट बनता है, वो वेबसाइट बनता है, और वो वेबसाइट जो है ना आपको लोगों को एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है। ये मेरा वेबसाइट है, जरा वेबसाइट पे जाए चेक करो। एक लड़के से मैं जब वो वेबसाइट देखता है देन he knows that these are professional. He knows that these are professional team. This is a professional organization. फिर जो है ना आपके साथ वो रेडी होता है सुबह की, जी आई एम गोइंग टू जॉइन, ठीक है। हाँ, और आजकल हाँ ये बात शरीफ साहब से, ये क्वेश्चन मेरे शरीफ साहब से है कि इस ऑर्गेनाइजेशन की आज तक फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन इसकी क्या है, कि हम
करते क्या कहाँ खड़े हैं है, इस वक्त? कहाँ पे खड़े हैं? हमारे पास 100 दरम है, 50 दरम है, 1000 दरम है, हम इसको आगे कैसे कर सकते हैं? और रजिस्ट्रेशन फीस जो है ना वो अभी तय कर लें कि भाई रजिस्ट्रेशन मेंबर्स के लिए कितनी होगी और आम लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस क्या होगी। लेकिन मैं एक बार फिर बता दूं, लोकल बॉडी बन रही है, अभी इसके लिए रजिस्ट्रेशन फीस रख दें। और बाकी जो फीस जो 100 दरम आप रहे हो ना, ये इस चीज़ फेवर में मैं नहीं हूँ। ये 100 दरम नहीं, ये 1000 5,000 होंगे। जब मैं जितने लोगों को मेरी जो वो है अप्रोच की जिसको मैं लाना चाहता हूँ, वो फिर 100 200 दरम 50 पैसा, ये कोई आप वेलफेयर का काम कर रहे हैं या बिजनेस लीडर कौन सा चला रहा है? बिजनेस लीडर कौन सा इज रिलेटेड विद द बिजनेस, इट इज नॉट अ वेलफेयर जॉब, इट्स नॉट अ डोनेशन। ये डोनेशन पे नहीं चलती, यू हैव टू डू इट। आप इस यहाँ पे आओगे, इसकी 5,000 मेंबरशिप आ जाओ, ये आपकी फ्यूचर में ये चीजें आएंगी, ये आएंगी और ये मैं गारंटी से कहता हूँ आपको। लेकिन उससे पहले जो 3 चीजें जो है ना आपकी बहुत जरूरी है, इस तरह के जो है आपका ठीक है। हम पूरी हमारे में सबसे पहले हाइड्रा को जवाब इसमें वजीर बंगश साहब ने हमें बहुत सेंसिटिव पॉइंट और बड़े इफेक्टिव पॉइंट बताए और वी आर रियली अप्रिशिएट और रियली इम्प्रेस। इसमें 2 पॉइंट इनके थे और बड़ी कंसेंसस के हिसाब से, और अगर देखा जाए तो बड़ा उसका वाइडर रेंज है, छोटे मामूली बात नहीं है। जिसमें सबसे बड़ी चीज़ जो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक आइडिया नज़रिया आपको मिल गया, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। जैसे अल्लामा इकबाल ने एक आइडिया दिया 1936 में, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक प्रोफेशनल आदमी ने इम्प्लीमेंट किया। मोहम्मद अली जिन्ना के अलावा कोई और होता तो ये हमारा यकीन है कि वो इतने बड़े प्रोजेक्ट को लेके नहीं चलता। इतना बड़ा थीम जो था कि इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो, और जो भी था वटेवर। तो सबसे पहले तो ये है कि ये ठीक है, आइडिया हमारे पास आ गया कि हम वेलफेयर करेंगे, वेलफेयर कैसी होगी, उसकी टाइप्स क्या होंगी, वेलफेयर कितनी नेचर की होगी, किस तरह की होगी, लोगों को क्या फ़ायदा होगा, ये बात के ऑब्जेक्टिव हैं सारे। लेकिन सबसे पहले जो चीज़ है वो हमें ये है कि हमें एक प्रोफेशनल तरीके से काम करना चाहिए। और प्रोफेशनल तरीके में उन्होंने 2 चीज़ों पर बड़ी अच्छे तरीके से रोशनी डाली और हाईलाइट किया कि सबसे पहले तो इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव होने चाहिए कि हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, लोगों को क्या चीज़ मोटिवेट कर सकते हैं, वो कौन सी चीज़ें होंगी जिसकी तरफ से लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे। हमारा एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और ऑब्जेक्टिव ये है कि हम उसको बैठ के बाकायदा एक अगराज़ व मकासिद बनाएँ, और अगराज़ व मकासिद के बाद फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक वेबसाइट भी बनाएं, ताकि हम लोगों को, जैसे मैंने पहले बताया था, कि मोटिवेट कर सकें, उनको कन्विंस कर सकें। और उसमें हमें कौन कौन से लोग होंगे जो क्या क्या जिम्मेदारियाँ अच्छे तरीके से अंजाम दे सकते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, उनकी स्किल देखी जाए, उनको न सिर्फ तजर्बा देखा जाए बल्कि उनके थोड़ा प्रोफेशनलिज्म भी देखा जाए कि प्रोफेशनलिज्म क्या है। वेबसाइट भी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, और कन्फ्यूजन ये है कि हम इसे पाकिस्तान एसोसिएशन से मुंसलिक करते हैं। पहली बात तो ये है कि वेलफेयर जो है ये नो लॉस एंड नो गेन भी होता है। इसमें किसी भी किस्म की कोई ऐसी एक्टिविटीज़ आप नहीं कर सकते कि जिसमें इस तरह की चीज़ें हों कि कोई हमें 5,000 दे रहा है, कोई हमें 10,000 दे रहा है। ये डोनेशन जो होती है वो सिर्फ गरीब लोगों के लिए होती है, पुअर और हेल्प लोगों के लिए होती है। पाकिस्तान एसोसिएशन उन लोगों के लिए काम करती है जो नीडी लोग हैं। मिसाल ये कि कोई अगर कानूनी तौर पे यहाँ रह गया, उसके पास टिकट के पैसे नहीं, पाकिस्तान एसोसिएशन कर रही है वो एक तरह की ज़कात करात या इस तरह के मामला हैं वेलफेयर के साथ। लेकिन यहाँ ये वेलफेयर वाला मामला नहीं है, ये मामला प्योरली सपोर्ट है, या ये दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि हम हैंड टूगेदर कर रहे हैं एक दूसरे से, कि हम एक दूसरे का साथ देंगे। और मैं आपको एक जवाब देता हूँ सर, थोड़ा सा मैं उसको कंप्लीट करूँ। दूसरी बात ये है कि ये हमारी जो लीडरशिप काउंसिल है, ये एक इसकी अपनी इंटाइटिटी है, यानी एक अपनी शनाख्त है। जब हम किसी के अम्ब्रेला के नीचे जाएंगे तो जाहिर है हमें उस अम्ब्रेला के नीचे रहना होगा। और दूसरी ये कि अम्ब्रेला वेलफेयर में कहीं नहीं होती। मिसाल ये कि अगर इमरान खान के साथ कोई तंजीम बना के वो अटैच होता है तो वो नहीं हो सकता, ईडी के साथ होता है तो नहीं, 100 मैनी तंजीमें अलग अलग बनी हैं। तो हमें इसको एक अपनी इंटाइटिटी देनी होगी। ये कोई मेरी कंट्रोवर्शियल बात नहीं है, लेकिन मेरी जो लीगल मालूमात हैं मैं वज़ीर बंगश साहब से शेयर कर रहा हूँ कि इसको हमें एक इंटाइटिटी का नाम देना होगा। और इंटाइटिटी हमारी ये है कि उनके पास तो 100 मैनी ऑब्जेक्टिव है। जैसे पाकिस्तान एसोसिएशन में उनका लीगल विंग काम कर रहा है, उनकी कम्युनिटी के हिसाब से वो स्पोर्ट्स विंग काम कर रहा है, दूसरे विंग का है, हमारा कोई विंग नहीं है। हमारे एक ही ऑब्जेक्टिव है और वो ये है कि हम किसी की आवाज़ पे किस तरह
اپنے آپ کو اس کے ساتھ کھڑا کر سکتے ہیں، اس کی آواز کو کس طرح بزنس کے حوالے سے، صرف بزنس کے حوالے سے اور کسی حوالے سے نہیں کہ اگر کوئی جیل میں سائن کر لینا کر لیں گے کر کے کاپی کر لو، یا بلکہ ایک پیپر رکھو جو آپ کے پاس آپ کا تاحیات ریکارڈ بھی پہنچے. میں صدر ہوں بھائی اس کے ابھی سائن کریں اور اس کی اپروو کر کے جی آپ میڈیا کا کام سنبھالیں. ہاں بالکل لینا صحیح ہے، اچھا ہے پراپر طریقے سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اس محفل میں بہت بڑی، یہ ہماری ایک اچیومنٹ ہے، بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس کامیابی کی میں سیرا حاجی شریف صاحب کو اور ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کو، شاہ سوار صاحب کو، فضل امین صاحب کو، ہمارے ایڈوکیٹ صاحب کو، سلیم اللہ صاحب کو، احمد جان صاحب کو، یہ سہرا ہم سب کے وہ چڑھتا ہے. اور میں بہت زیادہ خوش ہوں، اور ہم سب کو خوش ہونا چاہیے کہ جس مقصد کے لیے ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، آج جب اٹھ رہے ہیں، وہ مقصد ہم نے ایک اچیو کر لیا ہے. پہلی کامیابی یہ ہماری پہلی کامیابی ہے. سب کے لیے جو ہے یہ کلیپنگ ہونی چاہیے. جس چیز پہ جو ہے نا میں فوکس کر رہا تھا، بلکہ میں نہیں، ہمارے سارے ساتھی جس چیز کے لیے جو ہے نا جو وہ زور دے رہے تھے کہ ہمیں ایک جنرل باڈی بنانی چاہیے، اور وہ باڈی آج الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کے فضل کرم سے اور ہماری آپس میں محبت اور تعاون کے ساتھ یہ جنرل باڈی تشکیل دی گئی ہے، جس کی اناؤنسمنٹ میں ابھی کرنے جا رہا ہوں. سب سے پہلے وی شوڈ اسٹینڈ ان رسپیکٹ آف حاجی محمد شریف صاحب. ہم سب کھڑے ہو جائیں اس کے لیے جو ہے نا ہماری آنر کے لیے، اور کلیپ جی کے لیے ہمیں، اور یہ سہرا جو ہے نا ہم اس کو پہناتے ہیں. بیٹھے جی تشریف پر. یہ سارا جو ہمارے دلہا ہے، جس کو ہم دلہا کہہ سکتے ہیں، جس کو ہم سربراہ کہہ سکتے ہیں، جو ہمارے جو ہے نا رہبر ہے حاجی محمد شریف صاحب، اس کی جو خدمات ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں. لیکن میں اکثر جب بھی کھڑا ہوتا ہوں تو میں اس کی رسپیکٹ میں کچھ الفاظ وہ سناتا رہتا ہوں، بتاتا رہتا ہوں کہ حاجی شریف صاحب جو نہیں کریٹر. میں اچھے اس کو نہیں جانتا، کافی عرصے سے جانتا ہوں، لیکن جب بھی میں اس کے پاس جاتا تھا، بیٹھتا تھا، تو اس کی جو محفل میں جو ہے نا میں بڑا اچھا فیل کرتا تھا، خوشی مجھے محسوس ہوتی تھی. اس طرح کے عجیب قسم کے جو ہے نا یہ خیالات، اپنے آئیڈیاز جو ہے نا وہ تشکیل دیتے تھے. اور یہ اس کی جو یہ آج دبئی میں اس کے نہیں ہے، اگر آپ اس کے پیچھے جائیں، اس کے جو ہے نا آپ دیکھیں اس کی کافی خدمات ہیں پاکستان میں. اپنے خاص کر اپنے ہنگو کو ہارٹ ہمارے ایریا میں اس نے نئے جو ہے نا وہاں پہ پلیز، گیمز، لوگوں کی گیدرنگ، کسی مطلب ادیبوں کو، شاعروں کو جمع کر کے ان سے جو ہے نا ساری چیزیں کر کے، تو یہ ساری ان کی خدمات شامل ہے. اسٹرگلر ہے. ہی از اے کریٹر، وی آل ریسپیکٹ آف ہم. تو یہ آج ہمارے تاحیات جو ہے نا چیئرمین ہوں گے، سربراہ ہوں گے. حاجی شریف چیئرمین نمبر 1. نمبر 2 ہمارے صدر صاحب شہزاد بٹی صاحب، جو بڑے ریسپیکٹیبل ہمارے لیے ہے، اور اس کے لیے جو ہے نا یہ سہرا ہم پہناتے ہیں. آج تصویر ورنہ یہ کھڑا لگے گا خود ہی پہن کے. کوئی مشکل نہیں، مشکل ہے. اور ساتھ ساتھ حاجی شریف صاحب کی جو ریسپانسبلٹی یہ ہے کہ یہ ہمارے جو ہم جس طرح ہمارے گھروں میں ایک رہبر ہوتا ہے، ایک ہمارے دادا جی ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، وہ اس کا ہاتھ، اس کی شفقت ہماری سروں کے اوپر ہوتا ہے. یہ حاجی شریف صاحب کی اچھا فیل کرتے ہیں، اس کی شفقت ہمارے سروں پہ ہوگی. صدر صاحب شہزاد جہانگیر صاحب، یہ ہمارے جو ہے نا اس ٹیم کی لیڈر ہیں. اس ٹیم کو جو ہے یہ ساتھ چلیں گے، اور اس کی جو ایکسپیریمنٹ ہے، اور اس کی ایکسپیرینسز ہیں، اس کے تجربات ہیں، اس کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس کے یہ یہاں پہ امپلیمنٹ کریں گے، اور ہم اس کی قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے، اور اس کو ہم فالو کریں گے. ٹھیک ہے نا. سینئر نائب صدر شاہ سوار صاحب، رفا تجھی سے تاثر مونگا
सीनियर नायब सदर शाहसवार से नुमाई में और इसी की टीम में जो चलेंगे और हमारे अच्छे दोस्त मेरे काफ़ी करीब दोस्त हैं जनाब फजल अमीन यूसुफ जई साहब नायब सदर क्लैप जी उसके लिए मुबारक शरीफ मुबारक मुबारक सर जी तजुर्बात से मुस्तफीद करना है मुबारक मुबारक तशरीफ रखें अब मैं आली शरीफ साहब को गुजारिश करूँगा कि वो सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी एक मिनट मैं ज़रा अच्छा 5 नंबर जनरल सेक्रेटरी जिसमें मेरा नाम तजवीज़ किया गया मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि मैं ये जंप दूंगा ये सारी खिदमत लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी जिस तरह ये सारे जो मेरी जो डिस्कशन तजवीज़ थी जिसमें मैंने किया मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ आप लोगों को अपनाया है और किया है और मैं इंशाल्लाह इसको करके दिखाऊंगा पूरी बॉडी को जो है साथ लेकर चलेंगे इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी जितने भी मेरे ये आइडियाज़ और जितने ख्यालात और जितने कॉन्टेक्ट्स बिजनेस कम्युनिटी में इंशाल्लाह वो इस झंडे तले सब जमा होंगे इंशाल्लाह ये मेरी ख्वाहिश है थैंक यू मीडिया सेक्रेटरी ना हाँ दौलत खान से पूछता नहीं वो मौजूद नहीं है हमारे बीच मुफ्ती मोहम्मद साहब फाइनेंस सेक्रेटरी साहब जो हैं और जो मीडिया सेक्रेटरी हमारे अहमद जान साहब बहुत बड़ी इनकी खिदमत है हमारे इस ग्रुप को बनाने में अहमद जान साहब मीडिया के हवाले से जितनी भी इसकी खिदमत होंगी वो सारे ये अंजाम देंगे और इसकी एक बात मैं ऐड करना चाहूँ कि ये भी अहमद जान साहब जो है ना ये शरीफ साहब के उन साथियों में से हैं जो फाउंडर्स हैं ठीक है इसके लिए क्लैप होनी चाहिए ये उन फाउंडर में से हैं जिन्होंने इसकी हेल्प की है दौलत खान साहब मुफ्ती मोहम्मद साहब ये सारे उन लोगों में से हैं जिन्होंने हाजी शरीफ साहब की हेल्प किया और ये हुए आज इन्हीं की बदौलत हम जो है यहाँ पे बैठे इसके लिए क्लैप होनी चाहिए आगे 8 नंबर लीगल एडवाइजर एंड कंसल्टेंट शहजाद अख्तर साहब इसके लिए जो है ना जी आपको तंजीम का दिमाग ये पार्टी है जिसमें आप दिमाग है शहजाद अख्तर साहब जो है ना ये हमारे लीगल एडवाइजर होंगे इसके मशवरे से हम मुस्तफीद होंगे इनकी जो कंसल्टेंसी है वो हमारे इस तंजीम की काम आएगी और ये जो मंशूर हम बना रहे हैं जो एक आइडिया बना रहे हैं इसमें जो है ना ये हमारी हेल्प करेंगे और जनरल बॉडी सॉरी आप सबकी तरफ से सबसे ज़्यादा आज मुबारकबाद दूंगा हाजी शरीफ साहब को कि आज वो राइट कदम उठा दिया गया है जो कामयाबी की तरफ और मैं इसमें एक जुमला ये कहूँगा कि ये ओहदे हमारे लिए कुछ नहीं है बिल्कुल काम हमने एक बेड़ा उठाया है इसको हमने सबने पहला कदम उठा दिया उस बेड़े को मंजिल तक ले जाना है और लोगों को बताना है कि हमें इकट्ठे होकर सब कुछ चले उसकी वाले आज ही हमने ये भी फैसला कर लिया ना कि नेक्स्ट मीटिंग कब होगी ठीक है ना अच्छा दूसरी है कि इसमें सब लोग अपनी अपनी ईमेल फोन ये सब वजीर बंगर साहब को दे देंगे नहीं वो अपने नाम के आगे से नाम नहीं सही चलो मुश्किल नाम क्या एक तो आप लोग ऐसा करें कि अपने नाम और ईमेल एड्रेस मुझे दे दें नंबर दूसरी बात यह है कि नेक्स्ट मीटिंग का जो एजेंडा है वो है पॉलिसी कि कौन सी पॉलिसी इख्तियार करनी है उसके लिए जिसकी जो भी सजेशंस हैं वो रिटर्न एडवोकेट साहब को मेरी ईमेल इसमें है ईमेल कर सकते हैं कि मैं इसमें ये फिर उस ऊपर बहस होगी नेक्स्ट मीटिंग मैं आपको सब मेल्स कार्ड की कापी और वो राइटर पे आके आपको देता हूँ और मेरा ख्याल है नेक्स्ट वीक में हमारी वेबसाइट और इसका एक पूरा ब्लॉग जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ कि जिसमें जितने लोग हैं तकरीबन 60-70 तो आ चुके हैं उनके नाम उनकी कंपनी के नंबर उनका ईमेल एड्रेस उनके टेलीफोन नंबर
एक बायोडाटा एक फेसबुक पे एक पेज भी बना लेंगे इसका। जी हाँ बिल्कुल। बिजनेस काउंसिल का फेस ऑलरेडी पेज है वो कौन आप ऑपरेट कर रहे हो? हाँ मैं बिजनेस यूनिट काउंसिल के अच्छा। तो उसको प्रमोट करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कर नहीं, अगर आप वेबसाइट पे ज्वाइन कर लें। इसकी जो हम वेबसाइट चला बनाएंगे सकते हैं, फिर आप उसमें एक पेज बनाएंगे और उसमें सबकी पिक्चर्स देंगे। जो अच्छी तरह जानते हैं। मैं ये तो हमारा अभी ये कि secretary है, ये हमारा वाइस प्रेसिडेंट है, समझो कि मजबूरी की हालत में कर रहा हूँ। नहीं उसमें आप एडमिन आपके पास है ना। तो अगर आप जैसे आप मैनेजर भी कर सकते हो, एक दो तीन मैनेजर भी आप कर सकते हो, तो फिर हमारी मैं भी इसको यूज कर सकता हूँ। वो मेन एडमिन आप होंगे, एक दो मैनेजर को आप ठीक है, ऐसे कर दिए। जैसे मैं तो हम फिर उसमें हर चीज पोस्ट कर सकते हैं। वो एक लिस्ट आ गई। यार फोटो बने जो का वो वजीर मंगल साहब इसमें आज की डेट डाल लीजिए। हाँ मैंने अपने नहीं ऊपर डेट डाल दीजिए। ऊपर है ये ग्रुप ये 17 नहीं है। नहीं ये नहीं इस तरह नहीं। लेकिन इसमें एक गलती ये हुई कि आपने जो स्पेलिंग इसमें गलत लिखे हैं। आज की मीटिंग जनाब वजीर मंगल साहब के ऑफिस में ये जो बिजनेस आपने लिखा है ना, ये बिजनेस लीडर, ये स्पेलिंग गलत है। मुश्किल है ना उसकी। हाँ वो ESS है W इसको ई कर दीजिए अभी कॉपी करने से पहले। शुक्रिया। इसको काट दे। ई कर